ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں گے۔ میئر کراچی نے سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ عملے کی پیشہ ورانہ تربیت کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ CIIM نے شہری خدمات کی بہتری کے لیے KMC عملے کو جدید مہارتیں فراہم کی ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے، میئر کراچی نے سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ عملے کی پیشہ ورانہ تربیت کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ CIIM نے شہری خدمات کی بہتری کے لیے KMC عملے کو جدید مہارتیں فراہم کی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، میئر کراچی نے سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ عملے کی پیشہ ورانہ تربیت کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ تجاوزات کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم جاری، 301 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی۔ تجاوزات کے مرتکب 7 افراد گرفتار کر کے FIR درج کر لی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیے، تجاوزات کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم جاری ہے، 301 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے اور کارروائی کے دوران جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم جاری، 301 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تجاوزات کے مرتکب 7 افراد گرفتار کر کے FIR درج کر لی گئی ہے۔ تجاوزات کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم جاری ہے، 301 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں سید رضوان احمد سے۔ رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے گراں فروشی اور ٹریفک کے لیے جو رکاوٹ بننے والی تجاوزات ہیں اس کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم جاری ہے۔ جو کمشنر کراچی کو اس سلسلے میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ 301 گراں فروشوں کے خلاف اب تک کارروائی کی گئی ہے اور تجاوزات کے جو مرتکب 7 افراد ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گراں فروشوں کے خلاف کارروائی میں مجموعی طور پر 21 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی ان پر عائد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو گراں فروشی اور سافٹ تجاوزات کے خلاف مہم جو ہے جاری رکھنے کی ہدایت کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے دی گئی ہے۔ جی رضوان احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں FBR کی ٹیم کی کارروائی FB ایریا واٹر پمپ پر قائم محمود سویٹس پر پوائنٹس آف سیلز کی جعلی رسید جاری کرنے کا انکشاف۔ قوانین کے خلاف ورزی پر پچھلے ٹیکس واجبات کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ مبشر بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ کے مقام پر موجود ہوں اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی کارروائی کی گئی ہے، جس میں یہاں پر قائم جو محمود سویٹس ہے اس کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جعلی رسیدیں جاری کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پہلے جانچ کی گئی تھی، میرا کیمرہ مین حسن مہدی اگر رقم میں دکھائے تو یہ بیکری ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ FBR کی جانب سے مہر لگا کر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جرمانہ بھی جو ہے ہوگا، رواں ماہ کا جرمانہ جو رہتے تھے اور مزید جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ قوانین کے خلاف ورزی کی گئی تھی محمود سویٹس والوں نے اور اس وقت مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ جرمانہ بھی جو ہے وہ ہوگا۔ یہ کارروائی جو ہے وہ میڈیم ٹیکس آفس FBR کی جانب سے کی گئی ہے، ان کے کمشنر کی جانب سے یہ مؤثر اقدام کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دوسری جانب بھی جو ہے وہ سیل کر کے تمام شٹر جو ہیں وہاں مہر لگائی گئی ہے ایک آفیشیل طریقے سے اور باقاعدہ طور پر اب چونکہ جب یہ محمود سویٹس کی جانب سے آگے جو جرمانہ ہے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد ہی اگلا لائحہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ شہر قائد میں ڈاکو راج برقرار، عزیز بھٹی کے حدود میں دن دہاڑے صحافی سے واردات۔ CG 21 کے رپورٹر احسن عباسی کو 2 مسلح ملزمان نے واردات کا نشانہ بنایا۔ اسلحے کے زور پر موبائل فونز، نقدی اور قیمتی اشیاء لے کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اپڈیٹ کرتے چلے، شہر قائد میں ڈاکو راج قائم ہے۔ عزیز بھٹی کے حدود میں دن دہاڑے صحافی سے واردات ہوئی ہے۔ CG 21 کے رپورٹر احسن عباسی کو 2 مسلح ملزمان نے واردات کا نشانہ بنایا۔ اسلحے کے زور پر موبائل فونز، نقدی اور قیمتی اشیاء لے کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، شہر قائد میں ڈاکو راج برقرار ہے۔ عزیز بھٹی کے حدود میں دن دہاڑے صحافی سے واردات ہوئی ہے۔ CG 21 کے رپورٹر احسن عباسی کو 2 مسلح ملزمان نے واردات کا نشانہ بنایا ہے۔ مزید جانتے ہیں احسن عباسی سے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ احسن بتائیے گا کس طرح سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ واردات پیش آئی؟
देखिए बिल्कुल ये दो मुसल्लह नामालूम लोग थे जो कि अजीज भट्टी थाने के हदूद में अजीज भट्टी पार्क के करीब जो है उन्होंने घात लगा के मेरी चलती हुई मोटरसाइकिल को जो है वो इशारा देके साइड किया और उसके बाद वो असले के जोर पे जो है उन दोनों मुलजिमान ने जो है वो मुझे निशाना बनाया और मेरे साथ मौजूद जो मोबाइल फोन था जेर इस्तेमाल उस मोबाइल फोन को जो है वो छीना। असले के जोर पे साथ साथ जो है वो नकदी और दीगर जरूरी कागजात जो जेब में मौजूद थे वो भी वो अपने हमरा ले गए और जाते जाते जो है मोटरसाइकिल की जो चाबी थी वो भी जो है वो अपने साथ लेके गए हैं ताकि उनका ताक़ुब उनका पीछा ना किया जा सके। दिन दहाड़े ये वारदात हुई है और शहर का कोई इलाका कोई जिला ऐसा नहीं है जो कि इन चोर डकैतों से महफूज हो। पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद भी शहर में ऐसी होने वाली वारदातें जैसे शहरी लाखों रुपए की अपनी यौमिया नकदी मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेजात से जो है वो महरूम किया जा रहा है। ये पुलिस के महकमे की जो है वो कारकर्दगी पे सवालिया निशान खड़ा होता है। जी ठीक है एहसन, ये बताइएगा कि इससे पहले भी क्या आपके साथ कोई वारदात पेश आ चुकी है और अब तक पुलिस ने जो है वो क्या कार्रवाई की है और कितने आपके पास नकदी जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं, कौन कौन सा सामान जो है वो उन्होंने जब्त किया है, ये बताइएगा। देखिए इससे कबल भी एक वारदात हुई थी जब हम हब किनाल की कवरेज से वापस आ रहे थे अपनी टीम के हमरा साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में वारदात हुई थी जहाँ पे 3 मोटरसाइकिल पे सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान ने जो है वो नाका लगा के डकैतियां मारी थी। रास्ते में चलने वाली तमाम मोटरसाइकिल सवारों को लूटा था, साथ साथ जो है वो हमें भी निशाना बनाया। हमारे साथ तमाम ऑफिस का इक्विपमेंट जो मौजूद था गाड़ी में वो इक्विपमेंट भी जो है वो अपने हमरा ले गए थे, साथ कैमरामैन और रिपोर्टर्स और ड्राइवर का जो मोबाइल फोन था वो भी अपने साथ लेके गए थे। इसके बाद ये दूसरी वारदात हुई है जो अजीज भट्टी थाने की हदूद में हुई है जिसमें नकदी मोबाइल फोन से जो है वो महरूम किया गया है और ये सिर्फ साथियों को ही टारगेट नहीं हो रहे। शहर में दर्जनों की तादाद में शहरी हैं जो मुख्तलिफ गुजरगाहों पे इन जो मुसल्लह मुलजिमान हैं जो डाकू हैं इनसे जो है वो रोजाना की बुनियाद पे अपना कीमती सामान जो है वो खो बैठते हैं। पुलिस के नाके होने के बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ जो है दिन दहाड़े दिन के किसी भी वक्त किसी भी इलाके में होती हुई रिपोर्ट हो रही हैं। जी एहसन, आपके साथ साथ जो है वो रमीज़ कैमरामैन उनकी भी बात सामने आई है कि उनके साथ भी डकैती की वारदात रूनुमा हुई है, इस हवाले से भी बताइएगा कुछ। देखिए बिल्कुल हमारे सिर्फ रमीज कैमरामैन ही निशाना नहीं बने, इसके अलावा शहरियार भी जो है वो कैमरामैन एक बार जो शाहनूर जहाँ थाने की हदूद में निशाना बने थे। ये कहीं पे भी कोई भी वारदात जो है वो रिकॉर्ड की जाती है शहर में और मुल्जिमान जो है वो बआसानी वारदात करके फरार हो जाते हैं। हाल ही में जो एक वाक़या पेश आया था औरंगी टाउन में जहाँ पर डकैती के दौरान शहरियों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत एक डाकू को पकड़ के खंबे से बांधा था। तो शहरी अगर अपनी मदद आपके तहत जो है वो इत्तेहाद कायम करके जो है वो किसी वारदात को रोक ले, वरना कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं पुलिस जो मौकों पर नाके लगा के खड़ी नजर आती है वहाँ पे जो है ना कभी कोई ऐसी वारदात होती हुई जो पुलिस ने जो है वो ताक़ुब लगा के शहरी को महफूज किया हो, ऐसी कोई बहुत ज्यादा शहर में मिसालें नहीं मिलती। अलबत्ता रिकॉर्ड जो किया जाता है वो ज्यादातर महरूमी की वारदातें जो है वो शहरियों की रिकॉर्ड की जाती है जहाँ पे मुल्जिमान की जानिब से जो है वो बासानी वारदातें की जाती है। कोई सड़क कोई इशारा कोई इलाका ऐसा शहर का सातों जिले के मौजूद नहीं है जो कि इन चोर डकैतियों की वारदात से महफूज होती। ठीक है, शहर कायद में सहाफ़ी भी दिन दहाड़े डाकुओं के निशाने पर है। एहसन अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां नेशनल स्टेडियम में जारी। ग्राउंड को चारों जानिब से रंग बिरंगी झंडों से सजा दिया गया। अब से कुछ देर कबल मोहम्मद हमाद हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। हमाद बताइएगा। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं और कल इसकी इफ्तिताई तकरीब नेशनल बैंक स्टेडियम में रखी गई है। मैं इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हूँ और नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है वो तैयारियां आखिरी मराइल में हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा जो है वो स्टेज लगाया गया और साथ ही साथ स्टेज के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंध की सकाफ़त की झलकियाँ दिखाने के लिए भी जो है एक जो है वो स्टेज छोटा तैयार किया जा रहा है जहाँ पे सिंध की जो सकाफ़त है उसकी झलकियाँ जो है वो दिखाई जाएंगी और साथ ही साथ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है। कल दोपहर 2 बजे जो है इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई है जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे जो कि एज आ मेहमान खुसूसी और तकरीब से यहाँ पर खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ जो है
इफ्तिताई तकरीब में तमाम जो खिलाड़ियों का दस्ता है, डिपार्टमेंट और सूबे के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर मार्च पास करेंगे, और मार्च पास करने के बाद यहाँ पर जो है ताइक्वांडो की जो टीम होगी वो यहाँ पर जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा करेगी। साथ ही साथ जो है वो अनीका कियारी और दीगर गुलकार भी जो है वो यहाँ पर अपनी आवाज़ का जो है वो जादू जगाएंगे। इसी के साथ साथ नेशनल स्टेडियम के जो इतराफ़ में जो है रंग बिरंगी झंडियों से जो है स्टेडियम को सजाया गया है, और साथ ही साथ जितने भी एथलीट्स हैं उनके कटआउट्स भी जो है वो लगाए गए हैं। तो ये तमाम तर तैयारियां जो है वो अब मुकम्मल कर ली गई हैं। एक लंबा चौड़ा स्टेज आप देख सकते हैं मेरे कम में लगाया गया है। कल दोपहर 2 बजे जो है वो तकरीब होगी। तकरीब ख़त्म होने के बाद नमाज मगरिब के बाद जो यहाँ पर कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ गुलकार जो है अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। 36वें रोज रूस की फनकारा की जानिब से थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद। फनकारा ने बताया कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने से ज़्यादा वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। अब से कुछ देर कबल सैयद ज़ुबैर राशिद हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी रंगीनियों के साथ जारी वसारी दिखाई देता है, और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जहां पर फनकारी का हसीन इम्तजाज देखने को नज़र आता है, तो वहीं पर तलबा व तालिबात को खुसूसी तौर पर वर्कशॉप्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फराहम की जाती हैं। थिएटर वर्कशॉप के हवाले से आज एक खुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें रूसी फनकारा व गुलकारा ने आज तलबा को फनकारी की महारत से यकीनन तौर पर तरबियत जो है वो फराहम की। इनसे आपकी बात कराते हैं। व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थिएटर इज़ टू मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वेज, the sounds, and you know it is a very healthy activity as well. You are the professional theatre artist, you are a singer. What message would you like to give to these youngsters who are willing to be a great theatre artist? Work, just work, training, and try to learn and explore this world as deep as you can. And it's much important thing. It's love what you do, and try to do it in best way. Work as you can, as hard as you can. Yeah. We saw the type of activity. What kind of activity it was, and what is the purpose of this activity? It's a physical theatre technique. I explained just the basic instruments. It was very short workshop, just 1.5 hours. It's usually minimum 9 hours just for basic. So I tried to give some good instruments for improve body and imagination, and these instruments helps to improve improvisation skills of students. It's necessary to acting work and dancing work and any stage works, artistic works. बड़ी खूबसूरत से इन्होंने बात की कि भाई सीखने का अमल कभी भी रुकता नहीं है। ये इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हैं तो अभी भी वर्कशॉप्स के ज़रिए ख़ुद भी सीखती हैं, और यकीनन तौर पे इन्होंने नए तलबा को ये मैसेज दिया है कि लगन और रिहर्सल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन से काम करना वो बहुत ज़रूरी है एक बेहतरीन फ़नकार बनने के लिए। और थिएटर की अगर आपने आर्टिस्ट एक प्रोफेशनल बनना है तो यकीनन तौर पर आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉक है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रशियन अदाकारा व फ़नकारा गुलकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाजी कैंप। 166 दिन बीत गए। JEST PST उम्मीदवार ताहाल सरापा एहतजाज। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन का शिकवा मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला या बिलावल हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज का इंदिया। कहा हमारी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किए जाएं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट। ये पास के GESTB PST उम्मीदवार पीछे हटने को तैयार नहीं। एहतजाजी कैंप को 166 दिन हो चुके हैं, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन ने कहा कि हम चंद रोज बाद अपनी आवाज पहुंचाने वजीर आला हाउस की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। हम अगला जो हमारा लाए अमल होगा, हमने कानूनी कार्रवाई भी कर चुके हैं, हाई कोर्ट से फैसले जीत चुके हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद तक इंटरनेशनल मीडिया तक भी हमने अपना पैगाम पहुंचाया हुआ है। तो अब हम CM हाउस के बाहर जो गेट है वहां पर डायरेक्ट धरना देकर बैठ जाएंगे, या फिर हम बिलावल हाउस के जो गेट है वहां पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और कानूनी हक है। इंशाल्लाह ताला हम अगला जो
नेक्स्ट पावर शो होगा वो सीएम हाउस के बाहर होगा या बिलावल हाउस के बाहर होगा। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस हमारा रास्ता ना रोके, हम अपना एहतजाज पुरअमन रखेंगे। एहतजाजी कैंप में शरीक उम्मीदवार ने तरन्नुम के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टेस्ट लेकर पास करके अब हमें नहीं जानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं ये मानते। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हमारी उम्रें ज्यादा हो रही, ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किए जाएं, हमारे जायज मुतालबात को पूरा किया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ खुर्शीद रहमानी। सिंध हुकूमत ने शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुतालिक आगाही प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के तहत ह्यूमन राइट्स वीक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। वॉक सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक की गई। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। शहरी बाइख्तियार माशरा मजबूत। सिंध हुकूमत का अज़म शहरियों के हुकूक का मौसर तहफ़्फ़ुज़, शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही के लिए खुसूसी प्रोग्रामों का आगाज कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के तहत ह्यूमन राइट्स वीक वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान, ह्यूमन राइट्स स्टाफ, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। वॉक का आगाज सिंध असम्बली से हुआ, जो कराची प्रेस क्लब तक। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध बराए ह्यूमन राइट्स राजवीर सिंह ने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आने वाले दिनों में वो खुद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के दौरे करेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे। इंडस्ट्रीज की तरफ से भी अगर वायलेशन हो रही है, वो भी हमारा ही काम है कि हम उसको भी चेक करें। अगर किसी किस्म की भी शिकायत आ जाती है तो ही हम उस पे जो है वो अमल करते हैं और देखते भी हैं, और वो ग्रीवेंसेस दूर करने का पूरा काम किए जाएंगे। यही शिकायत दूर करने के लिए एड्रेस भी करेंगे, और मैं खुद भी अगले आइंदा दिनों में इस तरह की इंडस्ट्री में मैं खुद विजिट भी करूंगा, ये भी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट खालिद एके ने कहा कि दुनिया तेजी से डिजिटलाइज हो रही है और इसी के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट एक संगीन चैलेंज बन चुका है। सिंध पुलिस के पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप मौजूद है, जिसके जरिए शहरियों की शिकायत फौरी तौर पर दर्ज हो सकती हैं। ऑनलाइन जो है मतलब उसके मीडिया के थ्रू हैरेसमेंट है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चला दी उन्होंने, तो उसको हम जो है अवेयर करना चाह रहे हैं कि आपके क्या जो है वो यानी डिजिटल राइट्स क्या है। पुलिस के पास इस वक्त जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन मौजूद है, वो 1 क्लिक पे है कि वो नंबर क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं आ रहा है 11 है 33 क्या है, वो नंबर क्लिक करेंगे और फौरी तौर पे उनकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के तहत 10 दिसंबर आलमी यौम इंसानी हुकूक तक होने वाले प्रोग्राम्स मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द ने सदर मोहम्मद रिजवान इरफान की सरबराही में सूबाई वज़ीर दाखिला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात की। मुलाकात में मोबाइल फ़ोन डीलर्स के कत्ल के हालिया वाक़ियात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने ताजरों को यकीन दहानी कराई कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और ताजर बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने DIG ईस्ट और वेस्ट से तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के लिए पुलिस और CPLC के साथ इश्तराकी तस्दीकी दस्तावेज जारी की जाए। चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स की बाजियाबी में एसोसिएशन के मौसर किरदार पर वज़ीर दाखिला ने वफ्द को खराज तहसीन भी पेश किया। SSU पुलिस ने गुलशन मेमार से भत्ताखोर मुलजिम उसामा को हिरासत में ले लिया। मुलजिम खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से हैक करके भत्ता तलब करता था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम खवातीन को सोशल मीडिया के जरिए हिरासा करता था और उनसे भारी रकूम तलब करता था। गिरफ्तार मुलजिम थाना गुलशन मेमार में भत्ते के मुकदमे में पहले से मतलूब था और एक खातून से 10 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा भी कर चुका था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। मुलजिम के साबिका रिकॉर्ड की जांच का अमल जारी है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। आतिफ खान और दीगर अफराद पर बड़े माली फ्रॉड का इल्जाम है। अदालत ने कहा कि किसी और मुकदमे में मतलूब न होने की सूरत में उन्हें रिहा किया जाए। वकील सफाई का मौक़िफ़ था कि मामला कंपनी कवानीन के ज़ुमरे में आता है और इस हवाले से
CCP का रेफरेंस ज़रूरी होता है। FIA की जानिब से कार्रवाई के अख्तियार पर भी एतराज़ उठाया गया। अदालत ने 2 दीगर मुल्ज़िमान इम्तियाज़ अहमद चन्ना और फैसल महमूद शेख की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की भी तौसीक कर दी। रेंजर्स और कस्टम्स ने जोड़िया बाजार में स्मगलिंग माफिया के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है, जिसके दौरान भारी मिकदार में स्मगल शुदा छालियां और सिगरेट्स बरामद कर ली गई। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक स्मगल शुदा सामान गोदामों और दुकानों में छुपाया गया था। स्मगल शुदा अशिया सामान को कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। सदारती उम्मीदवार वकार आलम अब्बासी ने जीत का दावा करते हुए सिटी कोर्ट का माहौल बेहतर बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। उम्मीदवार वकला वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए। सदारती नशिस्त के उम्मीदवार वकार आलम अब्बासी भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर तौर पर मसरूफ हैं। वकला से मुलाकातें, मुसाफे और वोट की अपीलें जारी हैं। वकार आलम अब्बासी गुज़िश्ता माह सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन भी जीत चुके हैं। उनका कहना है कि सिटी कोर्ट का माहौल बेहतर बनाना उनकी अव्वली तरजीहात में शामिल है, जबकि वकला को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल उनके मंशूर का हिस्सा है। सिंध बार काउंसिल में हमारे वकला ने रिपीटर्स को जो है वो डिस्करेज किया। फिर हाई कोर्ट के इलेक्शन में जो है आपने देखा कि हमारे दोस्तों ने जो है वो रिपीटर्स को डिस्करेज किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर भी कराची बार में भी जो रिपीटर्स हैं उनको वकला डिस्करेज करेंगे। वकार आलम अब्बासी की टीम भी उनके हमरा मौजूद है, जिनका मौक़िफ़ है कि बार की बेहतरी के लिए तब्दीली ज़रूरी है और दोबारा इलेक्शन लड़ने वालों से निजात चाहते हैं। हमेशा जब भी इन पे फेथ किया, इन्होंने हमारे फेथ को कभी डैमेज नहीं किया और वकलाओं की फलाह के लिए हमेशा काम किया और इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि ये करेंगे। बतौर जनरल सेक्रेटरी तो हम उनके वजह से उसको हमने काफ़ी एडमायर किया था कि भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जो बार की फलाह के थे। देखिए, बार की फलाह इस सूरत में हो सकती है जब आज़ाद बार हो। हमारा वर्क अच्छा है, हम ज़रूर जीतेंगे और जो मुखालिफ कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है वो उनका पहला इलेक्शन हमारे ही ग्रुप से लड़ा था और वकार आलम अब्बासी ने ही उनको लेकर आए थे हमारे ग्रुप में। और पहला इलेक्शन जॉइंट सेक्रेटरी का जो लड़ा गया था 2016-17 की बात है, तो हमारे ही ग्रुप से लड़ा था और हमने ही उनको इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मतलब इतना ऊपर लेकर गए। अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी इंशाल्लाह इनको भी करेंगे। 2023 में भी इन इश्यूज़ पे जो है हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं। जब वकार आलम अब्बासी सेक्रेटरी था उस वक्त भी उन्होंने ये जो सिग्नल के इश्यूज़ हैं इस हवाले से कंपनीज से रब्ता भी किया, कंपनीज आई भी, लेकिन ये थोड़ा देर पा हल होने वाला मसला है। लेकिन उस वक्त भी हमने किया और इंशाल्लाह आके हमें यकीन है वकार अब्बासी इस पे ज़रूर कोई एक्शन लेगा। कराची बार के इंतखाबात दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होंगे। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमानी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ भी मौजूद। जिला में इंतहा पसंदी और फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए सहाफ़ियों से ताउन मांग लिया। अपडेट करते चले, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सैयद रिजवान अहमद से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम जो कि अछूते इकदाम की वजह से काफ़ी शोहरत रखते हैं, एक मुनफरिद इजलास जो है उनकी जानिब से आज तलब किया गया था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात की है उन्होंने। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ भी मौजूद थे। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले में इंसाफ पसंदी और फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए सहाफ़ियों से ताउन जो है वो फराहम करने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि किसी भी खबर की 24 घंटे तक तस्दीक का मैकेनिज्म जो है वो उनकी जानिब से बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में कंट्रोल रूम जो है उनके दफ्तर का उसको फाल करने और व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देने पर जो है वो इत्तफाक किया गया है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से अब तक जिले भर में जो किए गए इक़दाम हैं उसकी तफसील भी पेश की गई और इस सिलसिले में सहाफ़ियों से मशावरत करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ आरा भी तलब की जिससे शहरियों की जान और माल महफूज बनाने के साथ साथ तजावुज़ात के खात्मे और खुले मेन होलों को जो है कवर करने के हवाले से उनकी जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं वो बताए गए और सहाफ़ियों से मुख्तलिफ तजावीज़ भी जो है वो ली गई। जी रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنا اہم قرار دے دیا۔ چیئرمین فیصل موئز نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں اور مطالبہ کیا، کہا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں جمع رقم صنعتی زون کے انفراسٹرکچر پر خرچ کی جائے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ ایکسپورٹرز کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا، حکومت نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیا۔ ایف پی سی سی آئی اور کراچی کے بزنس مین فیصلے پر خوش دکھائی دیے۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کا کہنا تھا کہ ای ڈی ایف کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے سے برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا۔ فیصلے سے آئندہ مالی سال میں کم از کم 3 سے 4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ممکن ہے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں حکومت کے پاس 40 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہیں۔ اضافی ٹیکس جو آ رہا ہے اس کو تمام کے تمام وہ اس اضافی اماؤنٹ کو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے استعمال کرے، چھوٹے ایکسپورٹرز کی سپورٹ کے لیے استعمال کرے، اور جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کی گروتھ کے لیے استعمال کرے۔ اور ایک اور بات کہ جو ابھی اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو جو اس کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھے گی۔ فیصل موئز چیئرمین نارتھ کراچی ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی اربوں روپے کی رقم کراچی کے صنعتی زون کے انفراسٹرکچر پر خرچ کی جائے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی اربوں روپے ایکسپورٹ انڈسٹری کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان فنڈز کو فوری طور پہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے اور اس پیسے کو جو ہے وہ انڈسٹریل زونز میں لگایا جائے، جس سے انڈسٹری کی ایک بہتری کا تسلسل چلے گا۔ جو انفراسٹرکچر بدحالی کا شکار ہے وہ انفراسٹرکچر بہتر انداز میں بن سکے گا، اور یہ جو خاتمہ کیا ہے اس سے ایکسپورٹ انڈسٹری بوسٹ ہوگی۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود اربوں روپے کے استعمال کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا جائے اور ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تشکیل نو بھی کی جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام تیزی پر ہوا۔ 100 انڈیکس 802 پوائنٹس اضافے سے 1,67,085 پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 800 پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کو کاروبار کا اختتام نمایاں تیزی پر ہوا اور 100 انڈیکس 802 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,67,085 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری سیشن کے دوران انڈیکس ایک موقع پر بلند ترین سطح 1,67,923 تک پہنچا، جبکہ کم ترین سطح 1,66,369 ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل بہتر رہا، جس کے باعث خریداری کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا۔ لیکن ڈیورنگ دا ویک آپ دیکھیں تو اسٹیبل رہی مارکیٹ، جرنی کافی بہتر رہی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کو لے کے تھوڑی سی مارکیٹ میں گھبراہٹ تھی، الحمدللہ وہ بھی سیٹل ہو گیا۔ تو آج آپ دیکھیں جیسے ہی رات کو یہ ایکسٹینشن ہوا ہے، آج مارکیٹ نے زبردست کم بیک کیا ہے اور انڈیکس اگین آپ دیکھیں 1500 پوائنٹ پلس ہیں، تو اوور آل پوزیشن جو ہے نا کافی بہتر ہے۔ یہ ڈیورنگ دا ویک بھی مارکیٹ جو ہے نا کافی اسٹیبل رہی تھی۔ ماہرین کے مطابق معاشی بہتری کی توقعات اور مارکیٹ میں استحکام نے انڈیکس کو مضبوط سپورٹ فراہم کی۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سر سید یونیورسٹی کے تحت 46ویں HEC آل پاکستان انٹر یونیورسٹی وومن ٹینس چیمپئن شپ یونیورسٹی آف لاہور نے جیت لیا۔ پنجاب یونیورسٹی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد کی رپورٹ میں۔ نیا ناظم آباد میں سر سید یونیورسٹی کے تحت پاکستان انٹرورسٹی ٹورنامنٹ کا فائنل، یونیورسٹی آف لاہور نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ میں پنجاب یونیورسٹی دوسری اور لاہور کالج برائے خواتین کی تیسری پوزیشن آئی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے نائب صدر خالد رحمانی نے نوجوانوں کی نچلی سطح پر تربیت کی اہمیت پر زور دیا اور سر سید یونیورسٹی میں ٹینس کورٹس بنانے کی سفارش کی۔ اور اس کو ہم نے ایکسپوجر بھی دلوایا انٹرنیشنل اور یہاں، اور ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ ویری ویل۔ اس موقع پر کھلاڑیوں نے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا۔ We are so happy to represent you all again and I hope کہ کراچی میں اور بھی زیادہ ٹورنامنٹس ہو so that we can come and play here۔ ایکسپیرینس ہے یہ جو انہوں نے سارا ارینج کیا ہوا تھا، یہ بھی سب بہت اچھا تھا اور ہماری جو ٹیم ہے وہ ونر ہے، تو ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا کراچی میں، اور I played my finals ابھی around 1 hour ago۔ ایونٹ میں 14 یونیورسٹیز کی ٹیموں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں جیتنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔
थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल पुलिस की कार्रवाई, ताले तोड़ने वाला गिरोह सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार। मुलजिमान घरों की रैकी करते और फिर ताले तोड़कर वारदातें करते थे। अपडेट करते चले, थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल पुलिस की कार्रवाई है, ताले तोड़ने वाला गिरोह सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार। मुलजिमान घरों की रैकी करते और फिर ताले तोड़कर वारदातें करते थे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता रोज जो है वो औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कार्रवाई हुई है और ताले तोड़ने वाला गिरोह को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान घरों की रैकी करते और फिर ताले तोड़कर चोरी की वारदातें करते थे। एसएसपी औरंगी फिदा हुसैन जामारी का कहना है कि इन वारदातों में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अहकाम जारी किए गए, जिसमें एसएचओ औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मोहम्मद अली नियाजी समेत दीगर एहलकारों ने कार्रवाई की और मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। मुलजिमान में एक मुलजिमा और एक मुलजिम शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से चोरी की हुई एलसीडीज, लूटा हुआ सामान, कपड़े और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली हैं। मुलजिम और मुलजिमा की शनाख्त माया और जवाद के नामों से की गई है। पुलिस को काम का कहना है कि मुलजिमान मुतअद्दिद घरों में चोरी की वारदातें जो है वो करते थे और 4 से ज़ायद घर मालकान ने मुलजिमान की शनाख्त भी जो है वो कर ली है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जी, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।